So today this video will going to be a very different and very unique information. So this video is about a unique fellowship, research PhD fellowship, which is unique in its name also. The name is Prime Minister's Research Fellowship. This is one of the unique fellowship scheme and it has been designed for improving the quality of research in various higher education institutes throughout the country. This is one of the best, or I can say a finest fellowship in India, or a highest fellowship which a PhD scholar can avail throughout their research PhD career. The amount is 70,000, which is the starting. Yes, you are listening the right thing. 70,000 in the first and second year, followed by 75,000 and 80,000 rupees per month, which is a very good amount. So you have to know each and everything who can avail this fellowship, even if you are planning to take PhD or you have already registered in any university which can avail Prime Minister's Research Fellowship. So we'll continue with the details, the eligibility, and which is the best way to get this fellowship. I'll give you the tips and the tricks for this fellowship. So let's start the video. But before starting, I request you, if you are new to this channel, please subscribe the channel. So this is the web page of Prime Minister's Research Fellowship, that is pmrf.in. So this is the home page, and this fellowship is governed by the Ministry of Education, Government of India. So you can get each and every detail, which are the institutes associated with this fellowship and what are the eligibilities and all. First of all, just go through the granting institute. If you are in these institute, then you can avail this fellowship. So the very first, I can say very happily, the Banaras Hindu University. First logo, you can see it, Banaras Hindu University. Another one is ISC Bangalore, ISCR Berhampur, then ISCR Bhopal, then Kolkata, Mohali, means all IISCRs institute. Then some IITs, Bhilai, BHU, Bhubaneswar, Dhanbad, Goa, all IITs. Got it? All IITs. Then Jamia Millia Islamia, then JNU University, then National Institute of Technology, Tiruchirappalli, NIT, University of Delhi, University of Hyderabad, and Aligarh Muslim University. So these are the universities through which you can avail this fellowship, a handsome amount of 70,000 rupees. So मैंने आपको पहले ही बताया fellowship amount कितना है, 70,000 the first year, 70 another, then 75 third, fourth 80, and fifth 80. Along with that, you can get a 2 lakh per year. So besides, apart from this amount, is the fellowship amounts, you are eligible for a research grant of 2 lakh per year. This is like contingency, जो कि contingency amount दिया जाता है. So that is 2 lakhs per year. That means a total 10 lakhs for 5 years. बहुत ही अच्छी फेलोशिप है, आप ये अपने PhD में अवेल कर सकते हैं. अब बात करते हैं इसकी गाइडलाइंस की. सो प्लीज़ बी केयरफुल, एक भी स्टेप मिस मत करिएगा. मैं इसको बहुत ही डिटेल में बताने वाला हूँ और बहुत ज़रूरी है अगर आपको इसको सीरियसली अवेल करना. इट्स नॉट अ जोक और ये सिंपल फेलोशिप नहीं है. देखिए, इसके 2 चैनल हैं. अब आप सोचेंगे चैनल मतलब क्या. सो चैनल का मतलब मैं बता दूं, इसके 2 मोड होते हैं एप्लीकेशन के. मतलब इस फेलोशिप को अगर आपको अवेल करना है तो आप 2 तरीके से जा सकते हैं उस फेलोशिप के पास, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के पास. या तो पहले मैं एक ब्रीफ बता देता हूं, देन आई विल गो इन द पॉइंट्स. या तो आपको क्या करना है, आपका इंस्टीट्यूट आपके बिहाफ पे अप्रोच करे पीएमआरएफ को, या फिर आप डायरेक्टली अप्लाई करो पीएमआरएफ को. गॉट इट? कैंडिडेट मैं हूं, या तो मेरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी मेरे लिए एप्लीकेशन भेजे मिनिस्ट्री, और या मैं डायरेक्टली भेजूं. सो आप मुझे बताओ विच इज द गुड ऑप्शन. Absolutely no doubt the good option is जो रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स हैं वो अगर मेरी एप्लीकेशन फॉरवर्ड करते हैं
तो मेरा सेलेक्ट होने का स्कोप थोड़ा सा बढ़ेगा कंपैरेटिव टू द डायरेक्ट मोड। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है बिकॉज डायरेक्ट मोड में तो काफ़ी स्टूडेंट अवेल करते हैं, बट जो इंस्टीट्यूट होता है वो कुछ सेलेक्टेड स्टूडेंट, सेलेक्टेड प्रोफाइल को भेजेगा, which is a very good recommendation I can say. Now the eligibility and application procedure. देखिए जो डायरेक्ट एंट्री है वहाँ पर कैंडिडेट को खुद ही एप्लीकेशन अप्लाई करना है और 5 क्राइटेरिया है ये उसके क्वालिफाई होना चाहिए। तो जो पहला क्राइटेरिया है उसमें 3 ऑप्शन है, उन 3 में से आप कुछ भी क्वालिफाई करोगे देन यू आर एलिजिबल। तो पहला तो ये है कि आपने कोई अंडर ग्रेजुएट का कोर्स 4 साल का पूरा किया हो या फिर कोई इंटीग्रेटेड कोर्स किया हो, 2 साल का एमएससी किया हो, कहाँ से? आईएससीज, आईआईटी, एनआईटी, आईएसईआर और सेंट्रली फंडेड आईआईटी से। गॉट इट? और आपका सीजीपीए 8 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ से किया है तो इस टाइप का कोर्स होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है अगर आप कंप्लीट कर लिया हो या परस्यू कर रहे हो फाइनल ईयर के अंडर ग्रेजुएट किसी कोर्स को 4 साल का। अगर आप अंडर ग्रेजुएट कर रहे हो तो 4 साल का, ठीक है, और अगर एमएससी कर रहे हो तो 2 साल का। और ये अगर आप कोर्स कहीं से कर रहे हैं और अगर आप डुअल डिग्री कर रहे हैं तो वो 5 साल की होनी चाहिए, मतलब अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट को मिला के। वो अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं तो आपका मिनिमम सीजीपीए 8 से कम नहीं होना चाहिए एंड और इक्विवेलेंट अपार्ट फ्रॉम द मिनिमम स्कोर ऑफ 650 इन द प्रोस्पेक्टिव गेट सब्जेक्ट, मतलब आपकी गेट और यूजीसी में भी रैंक होना ज़रूरी है। या फिर आपने गेट क्वालिफाई किया हो और आपने एमटेक या एमएस कंप्लीट किया हो, ठीक है, विद पीएमएफआरसी ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट से विद सीजीपीए ऑफ 8। तो आप किसी भी चीज अगर आपने इन जगह से किया है यूजीपीजी देन इट इज़ ऑल्सो गुड, और अगर आपने किसी और जगह से किया है तो मिनिमम 8 सीजीपीए होना ज़रूरी है। और अगर गेट किया है तो गेट के साथ एमटेक या एमएस होना ज़रूरी है। उसके बाद आप पीएचडी प्रोग्राम में अप्लाई होना चाहिए और सेलेक्टेड होने के बाद आप वहीं से पीएचडी करेंगे। और अगर ग्रांट हो जाता है आपको तो यू आर नॉट अलाउड टू चेंज द पीएमआरएफ इंस्टीट्यूट। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रेलिवेंट अपलोड करने होंगे पोर्टल पे, and if he or she will get selected wish to seek admission does not support the PMRC will not be allowed। मतलब एक इंस्टीट्यूट आपको सेलेक्ट करना है और वही अवेल करना पड़ेगा। दूसरा जो है द मैट्रिक ऑन विच द कैंडिडेट विल बी जज विल नॉट इंक्लूड। देखिए कई सारी चीज़ें हैं उसमें, आपका रिसर्च एक्सपोजर, पब्लिकेशन, इंटरनेशनल कंपटीशन में परफॉर्मेंस हो सकता है, आप मैथ ओलंपियाड में बहुत अच्छा परफॉर्म करे हो, ये सारी चीज़ें कवर होंगी, आपका ग्रेड, आपका रिकमेंडेशन लेटर, सब कुछ, ठीक है। और within 12 to 18 month of admission to the PhD program the progress of the candidate will be judged। ऐसा नहीं है कि इसको देने के बाद ये छोड़ देंगे, 12 से 18 मंथ एडमिशन के बाद ये लोग आपके परफॉर्मेंस को जज करेंगे, इसीलिए स्ट्रॉन्ग रिसर्च प्रपोजल मैंडेटरी होता है। अब हम बात करते हैं लेटरल एंट्री की। देखिए लेटरल एंट्री होती है इंस्टीट्यूट आपके लिए अप्लाई करेगा, तो उस केस में आपने पीएचडी में एडमिशन ले रखा हो उस इंस्टीट्यूट में और आपको मिनिमम 12 मंथ हो चुके हों, मतलब 1 साल आपने पूरा कर लिया हो, देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई थ्रू योर इंस्टीट्यूट। और अगर आप कोई इंटीग्रेटेड पीएचडी कोर्स लिया है तो 24 मंथ पूरे होने चाहिए, देन यू आर एलिजिबल। उसके बाद आप इसको अप्लाई कर सकते हो और साल में आप 2 बार ये अप्लाई कर सकते हो, मतलब ओवरऑल आप 2 बार इसको अप्लाई कर सकते हो। फिर एटलीस्ट 4 कोर्स ऑफ द पीएचडी, मतलब कैंडिडेट ने कोर्स वर्क कंप्लीट किया हो विद मिनिमम 8.5 सीजीए, और कैंडिडेट अलाउड नहीं है इंस्टीट्यूट चेंज करने का। सपोज है कि एक इंस्टीट्यूट में मुझे मिल जाती है और मैं चेंज कर लूँ, नॉट पॉसिबल। गॉट इट। सार इंस्टीट्यूट को आपके डॉक्यूमेंट्स, आपकी डिटेल,
रिसर्च प्रपोजल के साथ सारी सॉफ्ट कॉपीज़ अपलोड करनी होगी पोर्टल पे, एंड देन द डिसीजन विल बी मेड कि आपको ये रिसर्च फेलोशिप अवॉर्ड होती है कि नहीं. So this is all about, so guidelines are very simple. if you are a master student तो आप डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं. मास्टर्स मतलब प्रोफेशनल होना चाहिए. और अगर आप पीएचडी में एडमिशन ले चुके हैं इन ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट्स में, जो इंस्टीट्यूट्स मैंने आपको पहले दिखाए, दीज आर द इंस्टीट्यूट्स, देन यू कैन अप्लाई थ्रू दिस. बट आई रिकमेंड कि आप को इसी इंस्टीट्यूट्स के थ्रू अप्लाई करना है, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजी. देखिए डेडलाइंस आ चुकी है, सो आप इसको बहुत ही आराम से लेटरल एंट्रीज में अप्लाई कर सकते हैं. सो गो हेड एंड अप्लाई फॉर दिस फेलोशिप इफ यू आर एलिजिबल. डू नॉट वेस्ट योर टाइम. थैंक यू. हैव अ नाइस डे. टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट.